I am here to bring that will in the city. मैं यहाँ हूँ उस इच्छा को इस शहर में लाने के लिए। You understand? So क्या आप that is समझ why रहे we are alive. We are not alive to take care of our families. हम जिंदा इसलिए नहीं है कि हमें अपना परिवार का देखभाल करना है। Yeah, we need to take care of our family. हाँ, हमें अपने परिवार का देखभाल करना We है। need to earn money. We need to earn money. हमें पैसे कमाने हैं। We need to do so many things so हमें- that we can be happy. और बहुत सारे काम करने हैं ताकि हम सब खुश रहे। But more than that, we are here to bring the will of God on earth. लेकिन उससे भी बढ़कर यह है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को धरती पर लाना है। Yeah. So when we pray the heart of God. तो जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर के दिल से प्रार्थना करते हैं। I didn't plan these things, it just blur. Okay, see, that's why I don't usually pray in public. Our prayer time should be a time where we pray the will of God. इसलिए मैं पब्लिक में जल्दी प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी हमारा समय होता है प्रार्थना करने का, परमेश्वर की इच्छा प्रार्थना करना। We should pray the will of God. हमें परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना करना है। So I feel in our days when we raise up in prayer, we can see the will of God on earth. मुझे ऐसे लगता है कि हमारे दिनों में जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की इच्छा को देखेंगे। I इस am not पृथ्वी पर। hopeless about anything मैं निराश नहीं हूँ किसी भी because चीज, I have the Bible. क्योंकि मेरे पास बाइबल है। I am not hopeless. I have lot of hope. मेरे पास निराशा नहीं है, लेकिन आशा है। When we leave this earth, जब मैं this earth should be set for our next generation to, we should see righteous take over this country. जब मैं इस धरती को छोड़ के जाऊंगा तो अगले पीढ़ी के लिए मैं छोड़ के जाऊंगा। हम जब छोड़ के जा रहे हैं ये धरती को कंप्लीट बदल के ही जाने का, मरने का नहीं, जीने का। धरती को बदलना देखना चाहिए। Today our mind, our plans, everything should be according to the mind and the plans of God. आज हमारे जो मन की जो प्लान है, जो योजना है, वो परमेश्वर की योजना से मिलन होना This is चाहिए। a time of prayer and fasting. ये समय है उपवास और प्रार्थना का। We have just finished 3 weeks of fasting. हमने 3 सप्ताह का उपवास खत्म किया है। Many of you could participate for 1 day, 3 days, 7 days. Some of you could fast for 21 days. आप में से कुछ लोगों ने 3 दिन, 7 दिन, लेकिन कुछ लोगों ने 21 दिन How उपवास many किया of है। you took part in fasting? आप में से कितने लोगों ने उपवास और प्रार्थना में Can I भाग see your लिया? Precious hands, holy hands. क्या आप अपने पवित्र हाथों को उठा No सकते problem. हो? Only few people. Okay, no problem. But still you need to fast. लेकिन फिर भी आपको प्रार्थना If कर you don't उपवास fast, you करना। cannot deal with many things in अगर life. आप उपवास नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजों में आप डील नहीं कर सकते। Yeah, there are many problems on this earth which will finish you off. बहुत सारी समस्या है इस पृथ्वी पर जो आपको खत्म कर देंगे। Okay, when you are, okay, you should fast. How many of you are in 5 group prayer? आप में से कितने लोग 5 लोगों का जो ग्रुप है प्रार्थना का उसमें है? Huh? Yeah, if you have to be a part of, if you are a member of house of prayer, you should be in one group or the other. अगर आप प्रार्थना के घर के मेंबर हो तो आपको एक ग्रुप में तो दूसरे ग्रुप में जुड़ना ही है। No one is above anyone. All of us, we have to participate. Why we should participate? In that when we 5 group of people pray, will of God will come on earth. हम में से कोई भी बड़ा या छोटा नहीं, हम सबको इसमें भाग लेना है, प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर की इच्छा आए। The will of the kingdom of God will come on this earth. परमेश्वर की राज्य की इच्छा इस धरती पर आएगी। Okay, and the name of God will be glorified on this earth. और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी इस धरती पर। Okay, in heaven the name of God is glorified. Whenever anybody says the name of Jesus, all the angels, whatever they do, when they hear the name of Jesus, they bow down. स्वर्ग में परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है। जब भी स्वर्गदूत स्वर्ग में यीशु को नाम को सुनते हैं तो वो उठ खड़े होकर वो झुकते हैं। There is no other name in heaven. और कोई नाम नहीं है स्वर्ग में, There is only one name in heaven. सिर्फ एक ही नाम है स्वर्ग में। It is the name of Jesus. वो नाम है यीशु मसीह का। Huh? It is the name of, वो यीशु का नाम है। you can pronounce, in Tamil we say Yesu. तमिल में हम यीशु कहते हैं। हाँ? हिंदी में क्या करते हैं? यीशु। यीशु करते हैं।
वी कहते हैं येसु। गुजराती में क्या बोला છે? गुजराती में हाँ, येसु। यीशु। Ah, see, some people they leave all the language, they talk in Hebrew, no? What is that? Yeshua HaMashiach. God listens all names. परमेश्वर सारे नामों को सुनता There was a man called T.L. Osborne. है। एक ऐसे व्यक्ति थे टी.एल. ऑसबर्न नामक। I love that man. मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। The moment he says the name of Jesus, जैसे वो यीशु मसीह का नाम कहता है, everybody will be healed. सारे लोगों को चंगाई मिल जाती है। Huh? There was a great man called Reinhard Bonnke. एक उससे भी महान व्यक्ति था रेनहार्ड बॉन्के नाम के। When he says the name of Jesus, the whole Africa submits to Jesus. अगर वो यीशु मसीह का नाम के तो सारे अफ्रीका का जो प्रधान थे वो यीशु मसीह पे अपने आप को सौंप दिया है। So we are in a very exciting time. तो हम खुशी के समय में जी These रहे 3 months, October, November, December, are beautiful months. ये 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये सुंदर Because महीने God हैं। has told us, pray in these 3 months. क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि प्रार्थना करो इन 3 महीनों में। So we have to pray these 3 months. तो हमें प्रार्थना करना है इन 3 महीने। Okay? ये 3 महीने में आप लोग प्रार्थना करना चाहिए। बहुत प्रार्थना करना चाहिए। आपका दफ्तर को लीव डाल के आप घर में बैठ के प्रार्थना करना चाहिए। I am not joking. I am telling the truth. मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं चुटकुला नहीं सुना रहा। Yeah. You have to pray. आपको प्रार्थना करना है। Prayer is our lifeline. प्रार्थना ये हमारी जीवन के जो Prayer is लाइफलाइन our है। lifeline. प्रार्थना हमारी लाइफलाइन है। Prayer opens door. प्रार्थना दरवाजे खोलती है। Today I want to talk about at that time I will talk about prayer also. God is an amazing good God. परमेश्वर अलौकिक I परमेश्वर tell you, भला He has kept the परमेश्वर, whole world for us, उसने सारी दुनिया हमारे लिए रखी for है us to take it ताकि हम इसे ले ले and use it और इसका इस्तेमाल for the करें glory of God. परमेश्वर की महिमा के There लिए। is no condition for a child of God. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है परमेश्वर के बच्चों There के is लिए। no barrier for a man of God. ऐसी कोई रुकावट नहीं है परमेश्वर के दास के लिए। The whole world is open for us to go and take what we want. ये सारी दुनिया खुली है ताकि हम जाकर ले ले जो हमें चाहिए। You are not a fearful minority. हम डर के जीने वाले समूह नहीं हैं। Don't mix with those guys who say we are a fearful minority. Let Up- them go do whatever they want. I am the majority. आप उनके साथ मत मिलो जो सोच रहे कि वो डरने वाले छोटे समूह I हैं। thank you for that verse which Andrea you said. What a word it is. I think that should be we all should read that. What a 1 Kings chapter 18 verse what? Verse 26. One man. When I read that verse, I said, may my days be like these days. तो जब मैंने वो वचन I पढ़ा मैं catch hold of all the balls of the prophets of Baal and baptize them. तो मैंने ऐसे सोचा कि इस दिनों का वो व्यक्ति मैं बनूं और सारे बाल के जो भविष्यवक्ता है उनको बपतिस्मा दूं। Yeah, I will do it. मैं वो करूंगा। I see that these are my desires. देखो ये मेरी इच्छाएं हैं। When I read this, I desire like this, जब मैं इसे पढ़ता हूँ मेरी इच्छा ऐसी हो and I जाती है। pray like this. मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ। I don't know anything about anything. I know, my prayer is very real. I pray. मुझे ज्यादा कुछ किस सब के बारे में पता नहीं लेकिन मेरी प्रार्थना सत्य है। Somebody may say I am weird, I am crazy, I am fanatic. कुछ लोग कहेंगे कि You do मैं whatever पागल you हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, But what to do? लेकिन क्या करूँ, I am like that only. मैं ऐसा ही हूँ। So I will do what I want to do. तो मैं ऐसा ही करूँगा जो मुझे करना है। Correct. Spiritually, I think every whole world is ours. आत्मिक Let's, में मैं ऐसे सोचता हूँ कि सारी दुनिया हमारी है। Okay, let's start today's verse. आज का Today I want to teach 3 very important the
I see that three cardinal principles of success from the Garden of Eden. मैं आज 3 मुख्य सिद्धांत सिखाने वाला हूँ ईदन के वाटिका से। Okay, because these three secrets, these three things cannot be violated. क्योंकि ये 3 चीजों को कोई तोड़ नहीं सकता। Okay, no religion can violate, no human being can violate, no nothing can violate. कोई धर्म या कोई मनुष्य कुछ भी नहीं If इसे you तोड़ violate सकता है। these three principles, you violate yourself, you finish you, and you will finish your kids. Let me tell you one thing, you will not only finish you, you finish your kids. तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा if you violate this. सब सीख लिया, this is see. Some things of the Garden of Eden you should not violate. तो कुछ चीजें जो ईदन वाटिका में है वो हमें उसको तोड़ना नहीं है। They are kept for our benefit. वो हमारे फायदे के लिए रखा है। They are kept so that we survive, not only survive, we rule. वो रखा है ताकि हम सिर्फ सरवाइव नहीं करें लेकिन हम राज्य करें। So there are many principles. Today I will teach 3 principles. आज मैं 3 सिद्धांतों को सिखाऊंगा। Many times there are 10 principles, but God tells me only 3 principles. बहुत समय 10 सिद्धांत होते हैं लेकिन परमेश्वर ने मुझे 3 ही कहा है। Okay, there are many things. One is first the concept of rest. सबसे पहले आराम के विषय। The first thing is concept of rest. सबसे पहली बात आराम का विषय। Okay, why rest? आराम क्यों? Let us read Genesis 2:1. हम 1, 2, 3 I will read. उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 1, 2 और 3 वचन देखेंगे। Okay, thus the heavens and the earth and the host of them were finished. On the 7th day, God ended his work which he had done, and he rested on the 7th day from all his work which he had done. Then God blessed the 7th day and sanctified it, because it is he rested from all his work which God had created and made. उत्पत्ति 2 अध्याय 1, 2 और 3 वचन। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। Okay, why rest? विश्राम क्यों? So God has made us also to rest only. तो First day, man was created on the 6th day. So the first day man was alive, he was actually resting. He was not doing anything. परमेश्वर ने हमें भी विश्राम के लिए ही बना है। जो मनुष्य का जो पहला दिन था उसको 6वें दिन पे परमेश्वर ने बनाया, लेकिन उसका जो पहला दिन था वो विश्राम का दिन था। So why we should rest? तो हमें विश्राम क्यों करना है? We should rest so that we become strong. हमें विश्राम करना है ताकि हम सामर्थ्य बने। Rest makes us strong. विश्राम हमें ताकतवर बनाता है। When you sleep in the night, हम रात में सोते हैं। when you sleep, you are resting. जब आप सोते हो तो आप विश्राम कर रहे हो। So when you are resting, what happens is the body repairs itself. तो जब आप विश्राम कर रहे हो तभी आपका जो शरीर है वो खुद की मरम्मत कर रहा है। Okay, so rest is a time where it restores us and it repairs us and it makes us very strong so that we can work the next day. तो विश्राम का समय ऐसा होता है वो जो हमें बांधता है, हमारी मरम्मत करता है, हमें ताकतवर बनाता है ताकि हम दूसरे दिन भी काम कर सके। So our life should be a life of rest. तो हमारा जो जीवन है वो विश्राम का जीवन होना So चाहिए। when you study, you should be at rest. तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तभी आपको विश्राम भी करना If है। you are working, you should work at rest. अगर आप काम कर रहे हो तो आपको विश्राम के साथ काम करना है। Always understand, we can work hard, but we have to have a restful lifestyle. हम बहुत कठिन परिश्रम कर सकते हैं लेकिन हमारा जीवन में विश्राम भी होना चाहिए। Today we try to do lot of things, unnecessary things, so that we can earn lot of money, and I tell you one thing, lot of money earned is a lot of money wasted. देखो हम बहुत सारे काम करते हैं ताकि हम ज़्यादा पैसा कमाएं, लेकिन मुझे आपसे कहना है कि अगर हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो ज़्यादा पैसा को बर्बाद भी कर देंगे। ज़्यादा पैसा बर्बाद करने के लिए ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं।
समझ गया? यस सर। तुम ज़्यादा पैसा कमाने का ज़रूरत नहीं है। मैं बोलेगा तुम जा मानेगा नहीं। ज़्यादा पैसा कमाने का ज़रूरत नहीं है। कम पैसा में हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं, पर हम नहीं जी पाएंगे। हमको मर्सिडीज बेंज कार चाहिए। यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ रहे हो? अभी मर्सिडीज बेंज कार में भी आप इधर आ सकते हैं, बस पकड़ के भी आ सकते बस में भी आ सकते हैं। तुम क्या कार में आती है? i10। i10 में भी आ सकती है। You understand what I'm saying? क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? If you understand, then you are okay. अगर आप समझ रहे हो तो आप ठीक हो। Always understand, you can have any car. हमेशा समझना कि आपके पास कोई भी The कार हो car सकती should है। work well. वो कार ठीक से काम करनी चाहिए, That's all. यही बात है। Today, many people have you can wear simple dress. आप सिंपल कपड़े पहन सकते हो। That is that. Sometimes we wear because we have the money. We wear such things. कुछ समय पे हमारे पास पैसा होता है तो इसलिए हम ऐसे कपड़े भी पहनते हैं। Actually, we don't need lot of money to live. सच में तो हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है Okay? जीने के लिए। Yeah. Please understand this. Many of us we think we need so much money. You don't need any money. हम सब सोच रहे कि हमें बहुत पैसा चाहिए, लेकिन आपको कुछ पैसा नहीं चाहिए। I actually don't spend any money anywhere. मैं कुछ भी पैसा इस्तेमाल नहीं करता हूँ कहीं भी। Ah. My purse has no money all the time मेरे पर्स में कोई पैसा नहीं है, हमेशा पैसा नहीं होता, because I don't spend only. क्योंकि मैं उसे खर्च ही नहीं करता। घर से पैदल आता हूँ ट्रेन तक. I take a train, come to the office. From train station I come walking to the prayer tower. हो गया. मैं पैदल एक्सरसाइज भी हो गया, मेरा सारा हो गया. I am fresh for the day. We actually don't need any money. सच में हमें पैसे की जरूरत ही नहीं है। We are actually running, chasing unnecessary things. We buy a house and pay EMI all our life. हम ऐसे व्यर्थ चीजों के पीछे भाग रहे हैं। हम घर खरीदते हैं, बाद में फिर जिंदगी भर उसका EMI चुकाते रहते हैं। Okay? This is how we learn from the world how to live. ऐसे हम सीखते हैं दुनिया से कैसे जीना है। Okay? We don't appreciate the mother's food. We appreciate some other food. हम Somebody पैसा के लिए बना के बेचता है रोड में. We buy that and eat and मम्मी का खाना को गाली देंगे. Okay? Devil is a restless devil. God is a restful God. शैतान ये विश्राम नहीं करता, लेकिन जो परमेश्वर है वो विश्राम में है। Restlessness is a proof of evil. विश्राम नहीं करना ये प्रूफ है कि वहां पे दुष्ट है। Let's read one verse. एक वचन पढ़ेंगे, Job 1:7. अय्यूब उसका पहला अध्याय 7वां वचन। The Lord said to Satan, "Where do you come from?" Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth, walking back and forth on it." अय्यूब पहला अध्याय 7वां वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। Okay? Have you seen पागल कुत्ता? क्या आपने पागल कुत्ते को देखा है? Anyone saw? क्या आपने देखा है? They will go like this. They will go like this. They will go like this. That is the devil in action. वो ऐसे जाते हैं, वो ऐसे जाते हैं, वो ऐसे जाते हैं। ये शैतान वहां पर एक्शन में है। You check your life. If you are restless, devil is working in your life. आप अपने जीवन को चेक करिए, अगर आपको विश्राम नहीं है तो शैतान आपके जीवन में काम कर रहा If your है। job doesn't give rest, you are actually oppressed. I tell you, I am required for my children, not for those guys who pay me money. They suck my blood and finish my life
which God has given me for my children. अगर हम नौकरी कर रहे हैं वहां पर दबाव है तो ये लोग हमारा खून चूस रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरा जीवन मेरे बच्चों के लिए दिया है. Every father, every mother, your primary duty is your children. हर एक पिता, हर एक माता, उनका मुख्य काम है उनके बच्चे, Not anything else. और कुछ नहीं. We live in this world हम इस दुनिया में जी रहे हैं because God has sent us in this world. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भेजा है इस दुनिया में. We have to know how to live. हमें ये जानना है हमें कैसे जीना है. Restlessness is of the evil. विश्राम नहीं करना ये शैतान की ओर से है. We are here to take not to be lazy. हमें सुस्त Not to नहीं be बनना है, lazy. हमें सुस्त नहीं बनना है. Laziness is not the will of God. जो सुस्ती है, ये जो सुस्त लोग है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है. सुस्त लोग, Lazy. आलसी लोग. आलसी correct? Yes, sir. सुस्त correct? सुस्त is also same. Huh? Okay. Some people, they're lazy people. बहुत लोग आलसी होते हैं. Laziness is dangerous. आलसी होना ये खतरनाक है. But you should work hard. But you cannot have restlessness in your life. लेकिन आपको कठिन काम करना है, लेकिन आपके जीवन में विश्राम नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. None of you should get caught in restlessness. आप में से कुछ लोग, किसी को भी विश्राम नहीं हो, ऐसे में आपको पकड़ा नहीं जाना चाहिए. Okay? Devil will not allow you because rest brings restoration. क्योंकि शैतान इसके अनुमति नहीं देगी. अगर आप विश्राम करोगे तो आपका बांध काम भी होगा. Rest will always bring restoration. जब आप विश्राम करोगे तभी आपको बांधा भी जाएगा. Every morning you're restored. हर सवेरे आपको बांधा जाता है. Okay, every house you should have a rule in your house. Every father. हर घर में एक नियम होना चाहिए, हर पिता को इसे लागू करना Okay, है. 10 o'clock lights off. रात को 10 बजे लाइट बंद. Huh? 10 o'clock lights off. 10 बजे लाइट बंद. Before that you should go to bed. उसके पहले आपको सोने जाना है. Any house where light is on after 10, it is not the will of God. It is not, God doesn't want such things. Nights are for resting. किसी भी घर में अगर रात को 10 बजे के बाद बिजली चल रही, लाइट चालू है, तो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है. रात हमें आराम विश्राम करने की. Even if somebody wants to sleep, they won't allow them to sleep. देखो, अगर किसी को सोना भी है तो ये उनको सोने नहीं देंगे. You see? There are many houses which are the den of thieves. बहुत सारे घर है जो चोरों के गुफा है. गुफा हो गया. बहुत बिलीवर का लोग का घर चोर लोग का गुफा हो गया. If God is not ruling your house, then the thieves will come. अगर परमेश्वर आपके घर में राज्य नहीं कर रहे तो चोर आएंगे. Thieves will come चोर आएंगे to make it a den. उसको गुफा बनाने के लिए. Every father should take authority over a house. हर एक पिता को अधिकार लेना है अपने घर पर. Switch off the light लाइट बंद कर देना है at 10 o'clock 10 बजे and go to sleep in that और house. सोने जाना है रात के समय पर. Yes. हाँ. And they should wake up early morning. और भोर के 3 समय o'clock. उठना है. 2 o'clock. They should wake up. भोर के समय 3 बजे 2 बजे आपको उठना है. 3 o'clock, 4 o'clock. 3 बजे 4 बजे. Huh? Otherwise, your house will become a den of thieves. नहीं तो आपका घर ये चोरों का एक गुफा बन जाएगा. Yeah. See, when Jesus entered the house of God, he said, "This is not a house of God. This is a den of thieves." देखो, जब यीशु मसीह परमेश्वर के घर में घुसा तभी उसने देखा कि ये तो परमेश्वर का घराना नहीं है, ये तो चोरों का गुफा बन चुका है. He said like that. उसने ऐसे कहा. When he enters your house, what he will say? जब वो आपके घर में प्रवेश करेगा तो वो क्या कहेगा? He should not say it is a den of thieves. उसे ऐसे नहीं कहना है कि ये चोरों का गुफा है. He should say this is a house of God. उसे ऐसा कहना चाहिए कि ये परमेश्वर का घर है. My house is a house of prayer for मेरा- the nations.
मेरा घर प्रार्थना का घर है राज्यों के लिए। My house is a house of prayer for the nations. मेरा घर प्रार्थना का घर है देशों के लिए। Your house should be a house of prayer for the nations. आपका जो घर है वो प्रार्थना का घर होना चाहिए देशों के लिए। Every father, can I see your hand? हर एक पिता, क्या मैं आपके You हाथों say every day, my house will be a house of prayer for the nations. आपको हर दिन ये कहना कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा देशों के लिए। You are a kutti father. अगर He is a everlasting father. आप एक छोटे पिता हो, वो युगान्य युग का पिता है। Huh? You are a kutti father on a kutti kingdom. आप एक छोटे से पिता हो एक छोटे से राज्य में। Oh, kutti kingdom, you are the father. वो छोटे राज्य में आप पिता हो। In that some kuttis also are there. उसमें और हाँ? छोटे लोग भी है। Kennedy, you are a kutti father, correct? भाई कैनेडी In a kutti house. Where is your kutti? I didn't see your kutti today. आप Okay, right, okay. See, he reflects that father. देखो ये वो पिता परमेश्वर को दर्शाते हैं। Represents that father in that small area. ये उस पिता को दर्शाते हैं उस छोटे से एरिया में। So you every day you say morning 5 o'clock, my house is a house of all सबको उठाओ। तो हर दिन सवेरे 4 बजे सबको उठाओ। My house is a house of prayer for the nation. Disturb, make noise. Go to the kitchen कहिए कि मेरा and घर drop one vessel, which will have 10 vessels inside. किचन में जाओ और बर्तन को गिरा दो और चिल्लाओ कि मेरा घर प्रार्थना का घर है। Let us take it easy. Hey, everybody get up at 4 o'clock. सारे लोगों को Let us उठा pray. दो, प्रार्थना करो Let's pray. और प्रार्थना करो Let's pray. और प्रार्थना करो। Prayer is so beautiful. Let's और pray. प्रार्थना कितनी सुंदर बात है, आइए We need प्रार्थना to know करें। how to pray. हमें जानना है कि कैसे प्रार्थना करनी Today we है, need to know how to pray. लेकिन हमें Prayer is जानना the है only कि thing we don't know. प्रार्थना कैसे करनी। प्रार्थना ऐसा एक विषय जो हमें नहीं पता। Sometimes I feel many people they don't know only to pray till their end. They just pray and they'll die also, but कभी- they have never prayed. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अंत तक लोगों को पता ही नहीं है कैसे प्रार्थना करना है। वो मर भी जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं कैसे पता प्रार्थना ही नहीं। करना है। पता ही नहीं है। Some churches they teach how to read prayer. कुछ कलीसिया ऐसे सिखाते हैं कि कैसे प्रार्थना को पढ़ सकते अयो। हैं। Prayer is okay. Very good. So have rest in your life. तो विश्राम होना चाहिए Don't आपके जीवन violate. में। When you violate this, you violate your health. इसे तोड़ना नहीं, अगर आप इसको तोड़ोगे तो आपके सेहत को फर्क पड़ेगा। When you violate your health, you violate your life. अगर आपकी सेहत खराब हो जाएगी तो आपका जीवन भी You can change your job. टूटेगा। आप अपनी नौकरी बदल Hey, दो, resign your job. रिजाइन कर दो अपनी नौकरी से। मेरा job, मेरा. See, I tell you, one day I left my job. देखो एक दिन मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। Nobody is our provider. कोई भी हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। Resign your job. Throw your job. No. What big job we are having. नौकरी छोड़ दो, क्या है ये, बहुत बड़ी बात Okay, नहीं है। I'll tell you one thing. You have certain responsibilities on this earth, which we cannot. When you go up, God will not ask you which company you worked for. God will ask you, how are your children? How are your children? देखो- What is the health of your children? What is the spiritual health of your kids? He देखो- will ask you. God was concerned about Eli's children. परमेश्वर को चिंता थी ये एली के बच्चे का क्या हो रहा है। Okay? So it is our duty. ये हमारी जिम्मेदारी है, It is our duty ये to हमारी- take care of our children. ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा काम है हमारे बच्चों का He ख्याल chose रखना। Abraham because अब्राहम को चुना। Abraham can command his household. क्योंकि अब्राहम ने अपने घराने को आदेश दिया था, You marry a wife who will obey you. आप एक ऐसी स्त्री से विवाह करना जो आपकी बात सुनेगी। Today we want, what sort of wives we want? तो आज किस प्रकार की स्त्री चाहिए हमें। Girls, you marry a guy whom you can obey. लड़कियां, आप उस लड़के से शादी करना जिसका आप आज्ञा मान सकते हो। What is the purpose if my wife doesn't obey me? अगर मेरी बीवी ही मेरा सुन रही नहीं है तो क्या फायदा इसका।
Hallelujah. हालेलुया। Huh? It's very important. It's very important. ये बहुत ही महत्व की बात है। Huh? Your wives should obey, submit to you. आपकी जो पत्नियां हैं उनको आप Everything comes out of rest, my friends, young boys, everything comes out of rest. ये सारी चीजें विश्राम से बाहर आती है। Young, my dear young girls, everything comes out of your rest. जवान लड़के जवान लड़कियां ये सारी चीजें विश्राम से Your बाहर good आती है। life comes out of your rest. आपका अच्छा जीवन विश्राम से बाहर आता है। It doesn't come otherwise. Otherwise you will get into restless things. नहीं तो फिर आप Restless things में आप गिर जाएंगे, अटक जाएंगे। रेस्टलेसनेस में अटक जाएंगे आप लोग। आपका जीवन नहीं रेस्टलेस हो। रेस्टलेस औरत को शादी किया, क्या हुआ? और औरत दिखने में बहुत सुंदर लगती है पर रेस्टलेस है। वो आदमी बहुत अच्छा दिखता है पर रेस्टलेस है। दाढ़ी बेड़ी है, कूलिंग ग्लास ऐसा करता है, ड्राइव चलता है पर रेस्टलेस आदमी है। बाइक चलाता है, देखो वो रेस्टफुल आदमी है क्या? लगता है शैतान को कंधे में रख के चला रहा है। पीछे एक औरत भी बैठी है। I pray, Lord have mercy. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर दया करो, दया करो, दया करो। One day I was praying like that and I was walking on the road. One bike was there, one boy was there, one girl was there. एक दिन मैं इसे प्रार्थना कर रहा था, एक बाइक यहाँ पे पड़ी। रोड में थी। Oh Lord have mercy. पिता परमेश्वर दया May कर। you have rest. We talk, we laugh, but you check your life. You are restful or you are restless. हम हंस रहे हैं लेकिन आपको अपने जीवन को जांचना Don't है। violate your life. आप विश्राम में हो या Don't अविश्राम violate में? your life. अपने You don't जीवन need को the money. तोड़ो मत। You really don't need the money. आपको पैसे की You जरूरत नहीं है। really don't need many things in life. आपको बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं है अपने जीवन में। See, I have an iPad. देखो मेरे पास आईपैड है, I don't need an iPad. मुझे आईपैड की जरूरत ही नहीं है। I am using because somebody blessed me with it. मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि किसी ने मुझे आशीष दिया है। ये I देखो use an iPhone. I don't need an iPhone. मैं आईफोन का भी इस्तेमाल करता हूँ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। Many people are praying, huh? God give me iPhone. बहुत लोग प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर मुझे आईफोन दे। huh? एक लड़का था इधर आता था, हाँ उसका पगार 8,000 9,000 था, आईफोन लेके आया। See how young people are wasting their life. Who said iPhone you should have? देखो कैसे जवान लोग अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। किसने कहा कि आपके पास आईफोन होना चाहिए? Who said you should have what watch? Smart watch. किसने कहा कि आपके पास एक स्मार्ट वॉच होना चाहिए? Who said we should have all these things? We don't need any of these things. किसने We कहा? need rest. हमें विश्राम की जरूरत I don't है। need an iPhone. मुझे आईफोन की जरूरत नहीं है। I need rest. मुझे विश्राम चाहिए। I need rest. मुझे विश्राम चाहिए। I sleep nicely. I want a good sleep. मैं सोता हूँ बड़े मजे से, मुझे अच्छी नींद चाहिए। Yes, you need an AC room. आपको एसी रूम की जरूरत है। Huh? You don't need an iPhone. आपको आईफोन की जरूरत नहीं है। You first buy a good thin cot and put AC and sleep well. आप एक पतले गद्दे को खरीद ले, एसी शुरू कर दे और अच्छे से मजे से सो जाए। Huh? You get what I say? क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा The हूँ? first thing you need is a good place to sleep. सबसे पहली बात ये कि आपके पास अच्छी जगह होना चाहिए जहाँ आप सो Second, सकते a हो। place to pray. दूसरी जगह जहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते हो। That's it. बस यही। So build houses which will have a good bedroom and a good prayer room. तो ऐसे घर को बांधे जहाँ पर एक अच्छा सोने का रूम हो, बेडरूम हो, और एक जहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते हो वैसा रूम हो। I want such a house. मुझे ऐसे घर चाहिए। I pray, Lord, give me a house where there is a good bedroom and a good prayer room. तो मैं ऐसे प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे एक ऐसा घर दे जहाँ पर एक अच्छा बेडरूम हो और एक अच्छा And प्रार्थना God का has रूम। given me a house which has a good bedroom और परमेश्वर ने मुझे ऐसा घर and दिया a है good prayer room. जहाँ पर एक अच्छा बेडरूम है और एक अच्छा प्रार्थना का भी रूम I है। really thank God. मैं परमेश्वर को Because धन्यवाद every देता हूँ morning I used to take my bike क्योंकि हर सवेरे मैं अपनी बाइक लेता था and I used to go far to pray. और दूर जाता था प्रार्थना करने के लिए।
When I kicked my bike, the जब- Spirit of the Lord used to come on me. Then I used to weep. जब मैं बाइक को चालू कर देता परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर आ जाती थी और मैं But it रोना was शुरू कर dark. देता था। At that time, I lived in a small house. उस समय मैं एक छोटे से घर में रहता था। Huh? 4,500 rupees rent. 4,500 रुपए उसका रेंट था। If I get up in all rooms, somebody is sleeping. अगर मैं उठूंगा तो कोई सोया है वहां पर। So I used to kick my bike and I go to the prayer tower which used to there in that Kolibri village every day morning. तो मैं बाइक शुरू करके सवेरे कोलीविरी विलेज में प्रेयर टावर था वहां पर जाता था हर I used सवेरे। to roll on that ground and I pray. मैं उस जमीन पर लौटता था और प्रार्थना करता था। Yeah, I asked God one thing. Lord, give me a prayer room in my मैं house. परमेश्वर से एक ही चीज मांगता था, परमेश्वर मुझे मेरे घर में एक प्रार्थना का रूम दे। You need prayer in your life. आपके जीवन में आपको प्रार्थना की जरूरत है। You need prayer in your life. आपको अपने जीवन में प्रार्थना की जरूरत है। Huh? We need prayer in our life. हमें प्रार्थना की जरूरत है हमारे जीवन में। And then God will give you a room with prayer room. और फिर परमेश्वर आपको एक रूम देगा जहाँ पर आप प्रार्थना कर सकते हो। Today I can lock and pray the whole day. Nobody will disturb me. आज मैं अपने आप को बंद करके प्रार्थना कर सकता हूँ, पूरा दिन कोई भी आके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। Whole day I can pray. Whole पूरा night I can pray. दिन Nobody में will प्रार्थना disturb. कर सकता हूँ, पूरी रात में प्रार्थना कर सकता हूँ, कोई भी आके मुझे। When you ask, God will give you. जब आप मांगोगे तो परमेश्वर What are you आपको asking? देगा। आप क्या मांग रहे Today हैं? what are you asking? आज आप क्या मांग रहे If हो? I have a prayer room, I can shake this world. अगर मेरे पास एक प्रार्थना का रूम है तो मैं इस धरती को हिला सकता I हूँ। can finish, I can rewrite this history of this world. मैं इस खत्म करके मैं इतिहास को वापस लिख सकता हूँ। I rewrite the history of this city. मैं इतिहास इस शहर का वापस लिख सकता हूँ। That's why I have come to this city. इसलिए मैं शहर में आया I'll हूँ। finish this city. मैं इसे खत्म करूंगा I'll इस शहर finish the को। demonic rule in this. इसके शैतानी प्रधानत्व को खत्म कर दूंगा I will मैं put the righteous people in power. और धर्मी लोगों को अधिकार की जगह पर डाल दूंगा। God is an awesome God. पर- He will do it. परमेश्वर महान परमेश्वर वो ऐसे ही करेगा Because His word says it will do. क्योंकि उसके वचन कहते कि For वैसा that my करेगा। rest is very important. इसके लिए मेरा जो विश्राम है वो For that बहुत my ही family is महत्वपूर्ण very है। important. मेरा परिवार भी बहुत महत्व रखता है। When I wanted to marry a wife, I had a 12 points. जब मुझे एक लड़की से शादी करना तो मेरे पास 12 पॉइंट्स थे उसके। Then I prayed. फिर मैंने प्रार्थना की, Then it became 4 points. फिर वो 4 पॉइंट बन गए, Then it became 1 point. फिर वो एक ही पॉइंट बन गया। Okay. Then I found a wife according to that 1 point, फिर मुझे एक ऐसी पत्नी मिली जो उस एक पॉइंट के बराबर थी। who is equally pagal like me. जो Yeah. It is very true that we are running. It's a very good thing. ये God बहुत ही is अच्छी good. बात है। He has answered my prayer. उसने मेरे प्रार्थना का उत्तर दिया। परमेश्वर भला है, Okay, He has answered my prayer. उसने- He will answer your prayer. उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, वो आपकी भी प्रार्थना का उत्तर देगा। Your prayer from your cry, from your heart, why He will not give. आपकी जो प्रार्थना, आपकी जो हृदय का जो रोना है, क्यों वो आपकी Any प्रार्थना का point. उत्तर See, नहीं some of देगा? you may live in a house where you may not have a wife who will obey you. You may not have a husband who is God-fearing. Do not worry. Still God will bless you. देखो, अगर आप ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ पर आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मान रही है, अगर आपका पति जो परमेश्वर का भय नहीं मान रहे, फिर भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। I am talking to the young people. When you start your life, don't start in futile things. Start with the right things. मैं जवान लोगों से बात कर रहा हूँ, जब अगर आप अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हो तो इस बातों से नहीं करना, अच्छी Married बातों से people, करना। God will give you grace. बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अनुग्रह देगा। Married people, शादीशुदा लोगों को परमेश्वर अनुग्रह देगा to live happily, ताकि आप खुश रहे, to really be happy with your spouse, ताकि आप अपने पति पत्नी के साथ खुश रहे, so that you can build a happy home. ताकि आप एक अच्छा खुशहाली वाला घर बनाए। Okay, the second principle. दूसरी सिद्धांत, Okay, you understood what I said? क्या The आप second समझ रहे हो principle. मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरा सिद्धांत, The second principle is a concept of multiplication. It's a principle of multiplication. जो दूसरा सिद्धांत है वो है मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि गुना करने का। Genesis chapter 1 verse 11. Ut- Every multiplication begins there. उत्पत्ति पहला अध्याय 11वां वचन, सारा गुना वहां से शुरू होता है। God said, let the earth bring forth grass, the herb that yields seed, and the fruit tree that yields fruit according to its kind,
though seed is in itself on the earth, and it was so. फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। Okay, let us read a similar passage in Genesis 2. वैसा ही एक अध्याय दूसरे अध्याय में देखेंगे उत्पत्ति के। Similar passage in Genesis chapter 2 वैसा ही verse 16 and 17. उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16 और 17वां वचन। He explains that one in this. परमेश्वर वो यहाँ The पर Lord समझा रहे हैं। commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in that day that you eat you shall surely die. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Okay, so here God is telling one thing, that whatever God is giving, there are two parts in His gift, in His blessing. यहाँ पर परमेश्वर कह रहे जो भी चीजें वो दे रहे हैं उसमें दो भाग है उनके आशीष में। One is yours, one is His. सब पहला आपका है, तो एक आपका है, एक उनका है। Whatever He gives, जो भी वो आपको देता one है, is yours, one is His. एक आपका है, एक उसका है। It has two parts. इसके दो भाग होते Say हैं। two parts. कहिए दो भाग। दो भाग, दो भाग। दो भाग एक भाग हमारे लिए, एक भाग परमेश्वर के। उसका है तो वापस दे देने का। ओके, उसका भाग हम नहीं खाने का। यस, खाए गए तो मर गया। यू अंडरस्टैंड? हाँ, वॉट एवर ही गिव्स। गॉड गिव अ बिग गार्डन टू मैन। परमेश्वर ने बड़ा वाटिका दिया यू मनुष्य कैन ईट को। एनी फ्रूट, आप कुछ भी फल खा सकते हो, बट देयर इज वन ट्री यू कैन नॉट। लेकिन एक वृक्ष ऐसा है जिसका आप नहीं खा सकते। हाँ, यू शुड टेक केयर ऑफ द ट्री। आपको उस पेड़ का ख्याल रखना है। हाँ, पेड़ को पानी देने का वो सभी करना चाहिए, पर उसका फल तुम नहीं खाने का। यस, सो यू शुड नॉट ईट फ्रॉम दैट ट्री। तो आपको उस पेड़ से नहीं खाना है। ओके, सो दिस इज टू पार्ट्स। तो ये दो भाग है। नाउ दिस इज वन इंपॉर्टेंट ट्रूथ विच वी नीड टू फॉलो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है जिसके पीछे हमें चलना है। In our life, we have salaries, monthly salaries, or business profit, or whatever, however you can. That is our income. हमारे जीवन में हमें पगार मिलता है, बिजनेस में मुनाफा मिलता है, वो हमारी आमदनी है। Okay, so it has two parts. तो इसके दो भाग है, One is ours, one is His. एक हमारा है, एक उसका है। So His we have to return to Him. तो जो उसका है वो हमें उसे वापस दे देना है। But today there are three parts. लेकिन आज इसके तीन भाग है। One is ours, एक हमारा, one is the government's, एक गवर्नमेंट का है, income tax, then one is God's. और एक परमेश्वर का, एक इनकम टैक्स सरकार Okay? का है। Three parts. तीन भाग। So all of you, how many of you pay income tax? तो आप में से कितने लोग इनकम All टैक्स of you भरते should हो? pay income tax. आप में से सबको इनकम टैक्स भरना है। भरना चाहिए. If you are in the tax bracket, then you have to pay income. अगर आपके नौकरी में टैक्स लग रहा है तो आपको उसे भरना है। You should not cheat anybody. You cheat the government, वो भी मर गया. आपको Cheat किस- God also मर गया. आपको किसी को धोखा नहीं देना, गवर्नमेंट को धोखा दोगे मर जाओगे, परमेश्वर को धोखा दोगे तो भी मर जाओगे। Because income tax is one of the very stringent laws in the क्योंकि country. ये जो इनकम टैक्स है ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट ये कानून है। Because it has very high fine. इसका जो फाइन है वो Very बहुत high. ज्यादा है। Okay, so we have to be careful about income tax. You should pay income tax. तो हमें इसका ख्याल रखना है, अगर इनकम टैक्स लग रहा है तो हमें उसे दे देना है। Okay, this is the second law. ये दूसरा Now कानून when है। it came to Abraham, Abraham gave a name to that God's part. अभी जब ये अब्राहम के पास आया तो उसने एक नाम दिया इस नियम को। Now that is called as tithe. अभी उसे दशमांश कहते हैं। So tithe you have to give to God. अभी जो दशमांश है वो आपको परमेश्वर को देना है। Okay, you have to give to God. वो परमेश्वर को देना है, You cannot give it to anybody else. वो और किसी और को आप नहीं दे सकते। Okay,